Assalamu alaikum, dear students. Lecture number 7, chapter number 2. Yesterday we discussed a case study on Caltex, which is linked to the South Africa, where we discussed the concept of utilitarianism and ethic of virtue and ethic of care. And we see the decision taken by the Caltex regarding sustaining their operations in South Africa and helping the people such as the brown colors and the black farm people to develop their social lives and growth in their lives and fighting for the justice. Today we are going to discuss another case which is also linked with utilitarianism. I already discussed with what the utilitarianism means when you took the decisions to perform such an actions to provide the maximum benefit to the society and create least loss to the society. So here we saw another case about the Ford Motors, who performed a utilitarianism perspective or decision. We see that here Ford Motor Company began losing market share to Japanese companies who were making compact fuel efficient cars. Ford कंपनी जो कि एक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, वो फील करने लगी कि जो जापानीज गाड़ियां हैं वो सस्ती हैं, फ्यूल एफिशिएंट हैं और कॉम्पैक्ट हैं, स्मार्ट हैं, और उनकी वजह से फोर्ड कंपनी गाड़ियां जो हैं वो मार्केट में कम बिक रही हैं. ली एपोका, द प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ड मोटर्स, decided to quick launch of the smart car, and the name of the smart car he gave the Pinto. Pinto was less than 2,000 pounds in weight, cost also less than $200, and one of the smart car they just prepared in 2 years instead of the normal preparation year 4 years. Because the Pinto was developed in hurry in very quick way, therefore some engineering issues and designs were in consideration. The specific event they faced the problem was the gas tank. They installed the gas tank behind the rear and rear axle also have the problem with the gas tank because the bullets of the rear also touching with the gas tank, जिसकी वजह से ये चांसेस थे कि अगर कभी थोड़ा बहुत रियर की वजह से हिट हो गया या किसी और की चीज़ की लगी साथ, तो गैस टैंक जो है वो लीक कर जाएगा या ब्रस्ट करेगा, जिसकी वजह से गैस जो है वो गाड़ी के अंदर जा सकती है, आग लग सकती है, नुकसान हो सकता है. तो इसको लेके इंजीनियर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मामला जो है सुलझ ना सका और डिज़ाइन जो है वो अपनी तरफ से चेंज करने की कोशिश भी की, लेकिन वो इस तरह से बनना पड़ा. फिर मैनेजर ने डिसाइड किया कि हम ये डिज़ाइन जो है एज इट इज़ ही रहने देते हैं. जैसे ये बन गई है गाड़ी, इसके पीछे साइड पे ही गैस टैंक लग गया है, दिस इज़ द वे टू लॉन्च द व्हीकल बिकॉज वी इन hurry to compete with the Japanese car. Manager decided to go ahead and manufacture the Pinto without changing the gas tank design. Therefore, had several reasons for their decision. First, the design met all the legal and government standards then in effect. उन्होंने इंजीनियर्स इसलिए गाड़ी बनाना का फैसला कर लिया कि क्योंकि उनको पता चल गया कि हम पहली तो बात ये कि जो गाड़ी का डिज़ाइन था वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक था.
दूसरी बात ये थी कि गाड़ी के कंफर्ट में कोई इशू नहीं था। कार जो है बहुत सारी इस तरह से ही बनाई गई थी और इस तरह से मार्केट में चल रही थी, लिहाजा मैनेजर ने कहा कि ठीक है। द मैनेजर फेल्ट दैट द कार वाज comparable in safety to several of the cars other companies were making and putting on the market. So दूसरों को देखते हुए उन्होंने कहा हमारी गाड़ी भी जो है वो सेफ है। थर्ड नंबर पे, अकॉर्डिंग टू an internal cost benefit analysis, this is the most ट्रिकी पॉइंट, मोस्ट क्रूशल पॉइंट, कि फोर्ड मोटर्स ने ये एनालिसिस किए कि हमें अगर हम ये डिज़ाइन चेंज करते हैं गैस टैंक का तो फिर हमें कितना खर्चा आएगा, और अगर हम चेंज नहीं करते और चेंज ना करने की सूरत में अगर लॉस होते हैं और नुकसान पहुंचता है तो फिर हमें कितना नुकसान जो है वो डिफरेंट सूरतों में भरना पड़ेगा। उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया, एक सर्वे लगाया कि अप्रॉक्सीमेटली 12.5 मिलियन ऑटोज वुड इवेंचुअली बी बिल्ड, कि तकरीबन 12.5 मिलियन गाड़ियां जो हैं वो पिंटो स्मार्ट कार जो है वो बनाएंगे। और मॉडिफाइंग द गैस टैंक ऑफ ईच पिंटो वुड कास्ट अबाउट $11 अ यूनिट। अगर हम गैस टैंक चेंज करेंगे 12.5 मिलियन पिंटो कार्स का, तो हर गाड़ी के बदले मॉडिफिकेशन के ऊपर खर्चा जो आएगा वो आएगा $11 पर कार। So total cost modifying the Pinto, the company plan to build then was simple to calculate. अगर 12.5 मिलियन ऑटो कार्स हैं और एक का गैस टैंक चेंज करने के ऊपर, डिज़ाइन चेंज करने के ऊपर $11 खर्च आते हैं, तो टोटल हमें तकरीबन $137 मिलियन जो हैं वो टोटल कास्ट की सूरत में बढ़ जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। क्योंकि हाँ, ये जो नया डिज़ाइन बनेगा उस डिज़ाइन के अंदर खर्चा जो है वो $11 पर गैस टैंक जो है वो बढ़ जाएगा। When the benefit would customers drive from the 137 million they would have to pay if the Pinto's gas tank was modified. Statistical data showed that modifying the gas tank would prevent the future loss of about 180 burn deaths. कहता है कि अगर पिंटो जो है वो अपना गैस टैंक चेंज करती है, इंजीनियर उसका गैस टैंक चेंज करते हैं, तो ये उम्मीद है कि ये जो 12.5 मिलियन गाड़ियों में से टोटल अंदाज़न 180 लोगों की मरने, जो चल के मर जाएंगे गैस लीक होने की वजह से, आग लगने की वजह से, 180 डेथ जो है वो बच सकती हैं। 180 के करीब सीरियस बर्न इंजरीज जो है उनसे बचा जा सकता है, और तकरीबन 2100 के करीब जो बर्न व्हीकल है, यानी जो गाड़ियों को आग लग जाएगी पिंटो की या पिंटो की वजह से दूसरी गाड़ियों को, तकरीबन 2100 के करीब आग लग सकती है। At the time of 1970, the government value a human life at $200,000. उस वक्त गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट ने तकरीबन एक इंसान की जान के बदले में जो कीमत रखी हुई थी वो थी $2 लाख in form of insurance। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी वैल्यूड सीरियस insurance companies valued a serious burn injury at $67,000। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर जो मर जाएंगे उनको हम $2 लाख पर पर्सन जो है $2 लाख पर पर्सन देंगे, और जो सीरियस इंजर्ड होंगे उनको इंश्योरेंस कंपनी देगी $67। उसके बाद जो एवरेज रेजिडुअल वैल्यू ऑन सब कॉम्पैक्ट्स वर एस्टिमेटेड एट $700। ये गाड़ियों को नुकसान पहुंचेगा या आग लगेगी या कोई भी इस तरह का नुकसान पहुंचेगा, तो उन्होंने कहा कि पर गाड़ी का अंदाजा हमारे करीब जो 2100 गाड़ियाँ होंगी वो $700 है। Therefore, in monetary terms, modifying the gas tank would have the benefit of preventing loss that added up to the total value of only $49.15 million। ये यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए कि अगर 180 मवात होती हैं तो $200,000 यानी कि $2 लाख पर पर्सन, 180 इंजरीज होती हैं तो 67,000 पर पर्सन, और अगर 2100 व्हीकल ज़ाया होती हैं तो $700 पर पर्सन। इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करें, जो वैल्यू आती है वो आती है $49.15 मिलियन।
तो अगर टैंक जो है वो चेंज नहीं करता फोर्ड मोटर्स वाले और वो डिज़ाइन वैसे ही लगा रहता है जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट हो सकते हैं, नुकसान पहुंच सकते हैं, तो जो टोटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पे करना पड़ेगा पैसा फोर्ड मोटर के लिए वो होगा 49.15। ये तो होगा बेनिफिट अगर डिज़ाइन चेंज करती हैं। और कास्ट कितनी आएगी डिज़ाइन चेंज करने की? 137 मिलियन डॉलर्स खर्चा आएगा डिज़ाइन चेंज करने का। और अगर डिज़ाइन चेंज नहीं करते, सॉरी, अगर डिज़ाइन चेंज करेंगे तो फ़ायदा कितना होगा? वो होगा सिर्फ 49 मिलियन डॉलर्स। खर्चा कितना होगा डिज़ाइन चेंज करने का? 137 मिलियन डॉलर। और फ़ायदा कितना होगा? 49 ओनली। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कास्ट और बेनिफिट्स में, और वो बनता है तकरीबन 87.85 मिलियन यूएस डॉलर्स। इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर चेंज करती है डिज़ाइन तो उसको 87.85 मिलियन डॉलर्स का लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा ओवरऑल टोटल प्रोजेक्ट में। अब ये जो सिचुएशन सारी देखी और बिजनेस नीड टू अर्न द प्रॉफिट, लिहाजा उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है वो गाड़ी ऐसे ही बनाएंगे। और फोर्ड मोटर्स के मैनेजर ने ये गाड़ी ऐसे बनाई और ये तकरीबन 1980 तक ये गाड़ी जो है मार्केट में रही। उसके बाद ये जो है वो रिप्लेस कर दी। और Ford managers went ahead and produced a Pinto without modifying its gas tank. It is estimated that in the decade that following, about 60 persons died in ferry accident involving Pinto, and at least twice that many suffered severe burn over large area of their bodies. Many requiring years of painful skills are Ford motor in the market 1980s। यानी कि मरने वाली तादाद बाद में कम रही, लेकिन इंजर्ड और जो जख्मी हुए जिनकी स्किन जल गई वो बहुत ज़्यादा तादाद में, डबल से भी ज़्यादा हो गए। लेकिन फोर्ड मोटर ने ये जारी रखा 1980 तक। अब आप थोड़ा सा ज़हन में लाएं द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है। अ जनरल टर्म ऑफ एनी व्यू दैट होल्ड्स that action and policies should be evaluated on the basis of the benefits and costs they will impose on society। यानी कि जब आप एनालिसिस इस एंगल में करते हैं कि आप देखते हैं सोसाइटी में बेनिफिट कितना ज़्यादा होगा और उसके ऊपर नुकसान या खर्चा कितना आएगा, जब आप इस तरह कंपैरिजन करते हैं तो दैट वे ऑफ कंपैरिजन हम कहते हैं कि इट इज़ यूटिलिटेरियनिज्म। यानी कि यूटिलिटी मीन्स अ फायदा, और हम देखते हैं कि इसके अंदर फ़ायदा कितना और नुकसान कितना सोसाइटी का। अब यहाँ पे फोर्ड मोटर्स ने डिसीजन लिया है ये सरासर उन्होंने अपने फ़ायदे के लिया है। उन्होंने सोसाइटी को कंसीडर नहीं किया, उन्होंने बिजनेस एथिक्स को कंसीडर नहीं किया, CSR को कंसीडर नहीं किया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट 87.1585 US मिलियन डॉलर्स, Ford Motors launched the Pinto car, and many people are died and burned severely, and society faced the consequences against the profit of the Ford Motors. So these type of activities are called unethical practices, because the Ford managers knows that the injuries will happen due to Pinto's gas tank issue, but what they did, they kept. So this is the wrong practice and engage the business ethics. So this is the case study. Please study the book and understand clearly. The next chapter, next topic, we will discuss the utilitarianism further and link the different definitions. If you have any question, please you can ask, comment on the YouTube channel or on the WhatsApp. I am here to answer. Thank you.